ચાકનના પ્રોજેક્ટના ઉપર છે. ચાકન પુનાનો એક ઘણો ફેમસ સિટી છે કે જે આજના તારીખમાં કહેવાય છે ડેટ્રોઇટ ઓફ મહારાષ્ટ્ર. કેમ કે મોસ્ટલી બધી ઓટોમોબાઈલ્સની બધી કંપનીઝ આજે ચાકનમાં છે. ચાકનનું જે લોકેશન છે એમાં ઘણા બધા અલગ અલગ ટાઈપના ઇન્ડસ્ટ્રીઝ છે અને ગવર્મેન્ટ આ લોકેશનને ઘણું ડેવલપમેન્ટ કરવાની છે. ફ્યુચરના અંદર ઘણા બધા પ્લાન્સ થઈ ગયા છે. એમાં પર મેટ્રો રેલવેઝ આવી રહી છે, મોનો રેલ આવે છે. આખું એક બસનું આખું એક નવું રૂટ સ્ટાર્ટ થઈ રહ્યું છે કે જે નાસિકના વાસ્તે જશે. નાસિક પણ એક મેટ્રો સિટી છે પુનાના જેવી, અને પુના અને નાસિકને કનેક્ટ કરે છે આ રોડ કે જ્યાં જે ચાકન થઈને જઈ રહ્યો છે. તો ચાકનમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવાનો શું બેનિફિટ છે, સાથે પ્રોપર્ટીઝમાં શું કામ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવું જોઈએ, અને આ પ્રોજેક્ટ જે છે આ ચાકનનો જે લોકેશન છે આ પુનાથી 40 કિલોમીટર્સના એપ્રોક્સિમેટલી ડિસ્ટન્સ પર છે અને કરીબ કરીબ 2 કલાકનો રસ્તો થાય છે. અહીંયાથી પુનાથી વહાં પહોંચવાના વાસ્તે આપણે એપ્રોક્સિમેટલી 2 કલાકનો રૂટ છે. તો અગર આપ રહેવાના વાસ્તે સોચી રહ્યા છો તો આપને આ પ્રોજેક્ટમાં ના ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરો, એ મારું સજેશન છે. અગર આપ ખાલી પ્યોર ઇન્વેસ્ટમેન્ટ જોઈ રહ્યા છો, નાનું શું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવું છે, અગર આપનું ફર્સ્ટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે તો તમારે એમ છે કે ધીમે ધીમે કરીને આપણે એક પ્રોપર્ટી બનાવે, આપણે એક નાના ઇન્વેસ્ટમેન્ટથી શરૂ કરીએ. 2 વર્ષ 3 વર્ષ પછી આપની એક પ્રોપર્ટી બની જાય કે જેના અંદર આપણે એક નાનો સો રેન્ટલ ઇન્કમ શરૂ થઈ જાય. 5 કે 6 વર્ષ પછી તમારે આ ફ્લેટને, આ પ્રોપર્ટીને વેચી અને પછી કઈ નવી મોટી પ્રોપર્ટી કરવી હોય તો એના વાસ્તે તમારું હેલ્પથી હશે. એટલે કે 5-6 વર્ષ પછી અગર તમે કોઈ મોટી પ્રોપર્ટી કરવા માંગો છો તો આ જે નાનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે એ તમારે કામમાં આવશે. તો એના વાસ્તે આ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ તમારા કામનું છે. તો ઓકે, ઘણા હજી પણ નવા દોસ્તો જોઈન્ટ થયા છે. આપણે એક નાનો સો એક पोल लिए છે. आप लोग अपने हमारा अपने प्रोजेक्ट अपना वेबिनार में आया છો તો તમારે એક તો ખબર જ છે કે આપણે પ્રોપર્ટીમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કેમ કરવું જોઈએ. તમારે ખબર છે કે પ્રોપર્ટીમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવાનો શું બેનિફિટ છે, એના જ વાસ્તે આજે આપ લોકો આ વેબિનારમાં આવ્યા છો. તો પ્રોપર્ટીમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવાનો શું ફાયદાઓ છે અને શું બેનિફિટ્સ છે ને એ લેવલ પર આજે મેં નહીં જતો. ખાલી આપને એમ શેર કરું છું તમારા સાથે કે પ્રોપર્ટીમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવાનો શું બેનિફિટ છે અને એના બારેમાં તમારા લોકોને શું તમારી રાય છે. તો હમણાં મેં એક પોલ લોન્ચ કરી રહ્યો છું. આપ લોકો મને બતાવો કે પ્રોપર્ટીમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવાનો શું બેનિફિટ છે. પ્રોપર્ટીનો બેનિફિટ એમ છે કે એ સેફ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે, આની ચોરી નહીં થઈ શકતી, આ તમારું નેટ વર્થ વધારે છે, તમારે એનું એપ્રિસિએશન મળે છે. ઇન્ફ્લેશનથી લડવાના વાસ્તે તમારે એક હથિયાર છે, કેમ કે હર વર્ષે ઇન્ફ્લેશન વધી રહ્યું છે, જીડીપી ઇન્ડિયાનું ગ્રો કરી રહ્યું છે અને એ હિસાબથી અગર તમારી ઇન્કમ નથી વધી રહી તો તમે પાછળ રહ્યા છો. તો અગર તમે પ્રોપર્ટીઝમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરો છો તો તમે જ્યારે પણ આ જીડીપી વધે છે, ઇન્ફ્લેશન વધે છે, તો સાથે તમારા પ્રોપર્ટીના પ્રાઇસીસ પણ વધે છે કે જેના વજહથી ફ્યુચરમાં તમારે બેનિફિટ થાય છે. પછી તમારે આ પ્રોજેક્ટના અંદર તમારે કેશ ફ્લોની તમારી ઇન્કમ મળે છે, તમારે રેન્ટલ ઇન્કમ મળે છે કે જે આજે તમારે બીજી કોઈ ચીજમાં નહીં મળે. ઘણા લોકો અલગ અલગ પ્રોપર્ટી, અલગ અલગ ગોલ્ડમાં કોઈ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરે છે. ઘણા લોકો એવા પણ છે કે જે સ્ટોક માર્કેટમાં પણ શાયદ કરતા હશે, આપનામાં તો નહીં કરતા હોય પણ ઘણા લોકો કરતા હશે. બહારના એવા લોકો છે કે જે લોકો મ્યુચ્યુઅલ ફંડ, એસઆઈપી આ બધી ચીજોમાં કરે છે, પણ પ્રોપર્ટી જેવું કોઈ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ નથી. પ્રોપર્ટીમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવાના ઘણા બેનિફિટ્સ છે. તો ઘણા લોકોએ અલગ અલગ જવાબ આપેલા છે. કોઈ કહે છે સેલ્ફ યુઝ, કોઈ કહે છે કે સેફ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે. યસ, બધાની વાત 100% બરાબર છે કેમ કે આ 5 પોઈન્ટ્સ વેલિડ છે. તો દોસ્તો અગર આપણે પ્રોપર્ટીઝમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવું છે તો ઘણા અલગ અલગ તરીકાઓ છે. આપણે પ્રોપર્ટીઝમાં ઘણા લોકો ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરે છે તાકે આમાં અંડર કન્સ્ટ્રક્શનના અંદર કોઈ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરે છે, કોઈ રેડી પોઝિશનમાં કરે છે, કોઈ પ્રીલીઝમાં જ કરે છે. પ્રીલીઝમાં એટલે કે તમે એક પ્રોપર્ટીમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરો અને પછી તમારે મંથલી ઇન્કમ એના અંદર સ્ટાર્ટ થઈ જાય. તેવા અલગ અલગ ટાઈપની પ્રોપર્ટીઝમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરે છે. પણ આજે આપણે જે પ્રોજેક્ટના બારેમાં આપણે વાત કરી રહ્યા છીએ તો એનું બેનિફિટ એમ છે કે આપણે આ પ્રોજેક્ટ અંડર કન્સ્ટ્રક્શન છે. અંડર કન્સ્ટ્રક્શન પ્રોજેક્ટમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવાના શું બેનિફિટ છે એ મેં તમારે બતાવું છું. આજે અગર તમે કોઈ પણ એક અંડર કન્સ્ટ્રક્શન પ્રોજેક્ટમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરો છો તો તમારેમાં 3 મેજર બેનિફિટ્સ મળે છે. પહેલું બેનિફિટ તમારે એ મળે છે કે તમારે કમ પ્રાઇસમાં તમારે એક પ્રોપર્ટીમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરી શકો છો. અગર તમે આજે જોશો કે આજથી 4 વર્ષ 5 વર્ષ પછી અગર તમે કોઈ પ્રોપર્ટીમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કીધું હશે તો આજે અગર એનો પ્રાઇસ 70 લાખ છે તો 2 વર્ષ 3 વર્ષ પહેલા આપને 50 લાખમાં મળી રહ્યું. સેમ તરીકાથી આજે અગર તમે કોઈ પ્રોપર્ટીમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરો છો જે મેં તમારે 50 લાખમાં આપું છું, પણ એના વાસ્તે તમારે ફૂલ પેમેન્ટ નથી આપવાનું. તમારે એના અંદર ખાલી એક 10% 20% આપીને તમારે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવાનું છે અને પછી તમારે પેમેન્ટના વાસ્તે 3 વર્ષનો ટાઈમ મળી જાય છે. તો એ તમારે બેનિફિટ છે કે અંડર કન્સ્ટ્રક્શન પ્રોજેક્ટમાં તમે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરો. સેકન્ડ તમારું બેનિફિટ એમ છે કે તમારે પ્રાઇસમાં બેનિફિટ મળી જાય છે. કેમ કે ક્યારે પણ એક બિલ્ડર એક પ્રોજેક્ટને લોન્ચ કરે તો સ્ટાર્ટિંગમાં એને ફંડ્સની ઘણી જરૂરત હોય છે. એના વાસ્તે એ પ્રાઇસ ઘણું નેગોશિએટ કરે છે, ઘણો ફાઇન પ્રાઇસમાં આપે છે.
તો એ પ્રાઇસનું બેનિફિટ તમારે મળી જાય છે. અને થર્ડ તમારું બેનિફિટ એમ છે કે તમારે ચોઇસ ઓફ ઇન્વેન્ટરી મળે છે. એટલે કે આજે તમે કોઈ પણ એક પ્રોપર્ટીમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરો, અગર એ પ્રોજેક્ટ રેડી પોઝિશનમાં છે, તો તમારે હાર્ડલી 4 કે 5 ફ્લેટ બચાવે છે બિલ્ડરના તરફથી, અને એવા જ ફ્લેટ બચાવે છે કે જેના નથી વેચાયા, જે કોઈએ પણ ચૂઝ નથી કર્યા, યા તો ફર્સ્ટ ફ્લોર પર છે, યા તો બેક સાઇડ ફેસિંગ વાળા છે, યા તો એવા કઈ ફ્લેટ છે કે જેના નથી વેચાયા. પણ હમણાં અગર તમે કોઈ પણ એક પ્રોજેક્ટમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરો છો, તો તમે ચાહો તો તમે હાયર ફ્લોર પર તમે લઈ શકો છો, બેક સાઇડ, ગાર્ડન ફેસિંગ, એવા બધા અલગ અલગ ટાઈપના તમારે એના અંદર ઓપ્શન મળે છે અંડર કન્સ્ટ્રક્શન પ્રોજેક્ટમાં. એટલે જે સેકન્ડ પ્રોજેક્ટ છે, જે ડાયનામિક રિયલ્ટર્સ કરીને એક બિલ્ડરનો મેં આજે લોન્ચ કરવા, જે મેં આજે બતાવવાનો છે, એ પ્રોજેક્ટમાં આ બધા જ બેનિફિટ છે. અને જે ચાકનના પ્રોજેક્ટમાં છે, એમાં તમારે બેનિફિટ મળે છે કે પ્રાઇસ બેનિફિટ મળે છે. અને જે સિટી છે, ચાકનની સિટી છે, એ જેમ ગ્રો કરશે, એ ગ્રોથનો બેનિફિટ આપને મળે છે. કેમ કે તમે હમણાં જે પ્રાઇસમાં બુકિંગ કરો છો, ઘણો કમ પ્રાઇસ છે. 1 BHK કરીબ કરીબ 18-19 લાખના પ્રાઇસિંગમાં છે. 2 BHK આપણે 27 લાખના પ્રાઇસિંગમાં આપણે તમે બુક કરી શકો છો. તમે આજે બુક કરશો તો તમારે ખાલી 5,000 રૂપિયા ખાલી તમારે ટોકન આપવી છે, અગર તમારે પ્રોજેક્ટ પસંદ આવે છે. અને પછી તમારે મંથલી ઇન્સ્ટોલમેન્ટ પણ ઘણા વાજિબ છે, ઘણા કમ દામમાં છે. અને 3 વર્ષનો ટાઈમ, 2 થી 3 વર્ષનો ટાઈમ તમારે મળી જાય છે એનો પેમેન્ટના અંદર. So I request Mr. Milind to kindly take over the webinar and kindly help the people to know more about the project. Mr. Milind. थैंक यू हुसैन भाई. गुड इवनिंग एवरीवन. मेरा नाम मिलिंद है. मैं आपको ये चाकन प्रोजेक्ट के लिए रन थ्रू कराऊंगा. सर, ये बेसिकली एक प्रोजेक्ट है. प्रोजेक्ट का नाम है द अरबाना, जो हम यहाँ पे लेके आए हैं चाकन में. इट इज अ ये प्योर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है. मतलब मैं आपको रहने के हिसाब से आप इसको देखो ही मत. ये एक प्रॉपर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है जिसमें आपको रिटर्न का आएगा. आइडियली मैं आपको एक थोड़ा सा पुणे के बारे में रन थ्रू करा देता हूँ. मतलब पूना क्या है, मतलब मोस्टली आप लोग पूना से रहेंगे, बट फिर भी मैं एक जो प्रेजेंटेशन का फ्लो रहता है मैं वो फॉलो कर रहा हूँ. सो पुणे ओवरव्यू. पुणे को ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट बोला जाता है क्योंकि में बहुत सारे कॉलेजेस हैं. बेसिकली सारे इंडिया से काफी बच्चे यहाँ पे पढ़ने आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से. सो एजुकेशन हब बना हुआ है ये. जोग्राफिकली वाइज देखेंगे तो महाराष्ट्र का ये सेकंड लार्जेस्ट सिटी है आफ्टर मुंबई. तो कनेक्टिविटी में भी इसका कोई इशू नहीं है. जीडीपी में जैसा पहले बोल चुका हूँ कि मुंबई के बाद पुणे इज द सेकंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर इन द महाराष्ट्र जीडीपी. एरिया वाइज ये 8th लार्जेस्ट सिटी है. हेरिटेज वाइज कल्चरल कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र है. एंड लिवेबिलिटी वाइज सेकंड नंबर पे ये आता है ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2022 सर्वे के हिसाब से. और वन ऑफ द मेजर है, यहाँ पे मेजर आईटी कंपनीज हैं, ऑटोमोबाइल कंपनीज भी है. सो ऑटोमोबाइल कंपनी भी यहाँ पे काफी है जनरली. अगर आप देखेंगे ये मैप में, सो चाकन इज कंसिडर एज डेट्रॉइट ऑफ महाराष्ट्र. मतलब डेट्रॉइट अगर किसी को पता होगा यूएसए में, तो वो कंसिडर होता था कि वहाँ पे सारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज रहती थी. सो दैट इज द रीजन चाकन में अगर आप देखेंगे मर्सिडीज हो गई, फॉक्स वैगन हो गया, महिंद्रा हो गया, बजाज हो गया. सो ये मेजर कंपनीज की मैं बात कर रहा हूँ. उसके अलावा भी मल्टीपल कंपनीज हैं जो या तो पार्ट सप्लाई करते हैं या दे आर अपने सेगमेंट में वो काफी नोन कंपनी है, जैसे सोमा, कॉमस्टार, लूमेक्स. तो मल्टीपल कंपनीज के कारण चाकन को जनरली डेट्रॉइट ऑफ महाराष्ट्र बोला जाता है. और ये मेजर प्रेजेंस, इसका सबसे बड़ा यूएसपी ये है कि पुणे के पास में ही है. मतलब पुणे जैसे मुंबई, नवी मुंबई होता है, वैसे ये पुणे और पीसीएमसी है. सो ये पीसीएमसी के पास में ही है. अगर कोई पुणे जानता होगा तो टुवर्ड्स नासिक अब जाते पुणे से, तो चाकन बीच में आता है. आइडियली चाकन का ओवरव्यू ये 2021 से 2041 का डेवलपमेंट प्लान है पीएमआरडीए का, जिसमें उनका प्रोजेक्शन है कि रेसिडेंशियल में 34% लैंड डेवलप करना है उनको. बट आप अगर एक देखोगे तो 48%, क्लोज टू 50% ऑफ जो लैंड है वो गवर्नमेंट ने मार्क किया है फॉर इंडस्ट्रियल यूज. जैसे चाकन का फेज 5 आने वाला है. सो ये 20 साल का गवर्नमेंट का प्रोजेक्शन है कि हमको दिस इज हाउ वी हैव, हमें ये डेवलप करना है लैंड. एम्प्लॉयमेंट प्रोजेक्शन अगर आप देखेंगे गवर्नमेंट का, ये एक्सपेक्टेड है कि 1,20,000 एम्प्लॉयज 2041 तक आ जाएंगे. 1,20,000 एम्प्लॉय बहुत बड़ी बात होती है टेक्निकली. एक आदमी अगर आ रहा है कोई इंसान, तो उसके साथ उसकी फैमिली आती है, तो वो 4 लोग रहने वाले होते हैं. तो मैं सिर्फ एक आपको ओवरव्यू बता रहा हूँ कि 5 से 6 लाख लोग की पॉपुलेशन बढ़ने वाली है चाकन में विद इन 10 to 15 years ऑफ टाइमलाइन. और ये जो भी फिगर्स हैं, ये कॉयलस इंटरनेशनल का रिपोर्ट है. और मैं अभी भी बोल रहा हूँ, कॉयलस हमेशा एक लोअर साइड पकड़ के चलता है, हाई साइड पे कभी नहीं रहता, कि बेर मिनिमम इतना होना ही चाहिए. अगर आप एम्प्लॉयमेंट हाफ देखेंगे तो टेक्निकली जैसे मैंने फेज 5 आपको बोला है, अगर आप राइट हैंड साइड पे देख रहे होंगे मैप में, तो ऑरेंज कलर का डिमार्केशन है फेज 5 का. सो टेक्निकली चाकन में वो डेवलप हो रहा है.
मेजर जो नया इन्वेस्टमेंट हुआ है लोगोस करके है, दैट इज अ वेयर हाउसिंग कंपनी, वर्ल्ड की वन ऑफ द टॉप कंपनीज है, जिसने 77 एकर्स का डेवलपमेंट लैंड लिया है एक्वायर फॉर वेयर हाउसिंग। ब्रिजस्टोन ने अपना 600 करोड़ का प्लांट सेटअप करा है एक्सपांशन में, जिसमें 600 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रहा है। एंड महिंद्रा इज डूइंग अ मेजर इन्वेस्टमेंट, जिसमें 10,000 करोड़ का वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल ऑटोमोबाइल डेवलपमेंट, सो विच विल बी फंक्शनल बाय 2029। और अगर आप नीचे देखोगे तो आपको मेजर प्लेयर्स देखेंगे, इनफैक्ट मैं टाटा का नाम भूल गया था, आई एम सो सॉरी। शिंडलर है, लॉरियल है, हुंडा है, ब्रिस्टल है, माले है, बेयर है। सो ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। नाउ अपकमिंग, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मेजर ये मुंबई से कनेक्टेड है, JNPT इज ऑलरेडी कनेक्टेड बाय रेलवे। सो पुणे को चाकन को कैसे ये और कनेक्ट करना चाहते हैं, सेकंड पैराग्राफ में अपकमिंग रीजनल इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो टेक्निकली मेट्रो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का लिंकेज जरूरी है, रिंग रोड का काम चल ही रहा है। एंड पुरंदर एयरपोर्ट दैट इज ऑन अदर साइड ऑफ द सिटी, वहाँ पे प्रपोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसका अभी कुछ खास काम शुरू नहीं हुआ है। स्मार्ट सिटी इनिशिएटिव वाइज देखेंगे, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ, दिस सेकंड इन द ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स। एंड पुणे पिंपरी चिंचवाड़ इज जनरली एज अ प्लांट सिटी, जैसे नवी मुंबई प्लांट है वैसे ही पिंपरी चिंचवाड़ वैसे ही प्लांट सिटी। ऑटोमोबाइल का जो प्रोजेक्शन है, अराउंड 70,000 न्यू जॉब्स बाय 2041 आ जाएगी। एंड 68% ऑफ द जॉब्स आर जनरेटेड बाय SME। सो टेक्निकली अगर मैं आज मर्सिडीज की बात करूं या बजाज की या महिंद्रा की बात करूं, अगर वो EV प्लांट सेटअप कर रहे हैं तो उसके जो पार्ट्स रहेंगे वो उन लोगों को वहां पे उसके लिए सप्लायर्स लगेंगे जो उनको बेनिफिट पार्ट्स बना के देंगे, तो ऑब्वियसली उसके कारण SME भी बढ़ेगा। यंग वर्कफोर्स, इंडियन पॉपुलेशन जनरली कंसिडर एज यंग पॉपुलेशन, जिसका 48% ऑफ द वर्क ग्रुप जो है वो 20 से 40 साल की एज में। अगर आप देखेंगे तो डायरेक्ट और इनडायरेक्टली क्लोजली अराउंड 31,000 जॉब्स और डेवलप होने वाली है, अपार्ट फ्रॉम दैट 70,000 जो हम बात कर रहे थे। एंड एस्टैब्लिश एजुकेशन जो है उसमें आप देखेंगे तो अराउंड 16 मेजर प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज आर देयर, 811 कॉलेजेस आर ऑल्सो देयर। नाउ कनेक्टिविटी मेजर इंपॉर्टेंट किसी का भी रहता है कनेक्टिविटी का, तो चाकन ऑलरेडी मैंने जैसे बोला, अगर आप पुणे से नासिक जा रहे हैं तो ये बीच में आता है, आप मैप में भी देख सकते हैं। उसके अलावा जो नया अभी का जो करंट एयरपोर्ट है वो 27 किलोमीटर है चाकन से। रेलवे स्टेशन अगर आज आपको चाकन जाना तो आपके पास एक ही तरीका है, आप तलेगांव चिंचवाड़ा देहू रोड पे कनेक्ट कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आपको दूसरी कनेक्टिविटी चाहिए, सो दैट इज अ मेजर बमर, उसके लिए गवर्नमेंट अभी काम कर रही है, जिसका आगे डेवलपमेंट मैं आपको बताऊंगा। मेट्रो का अपकमिंग मेट्रो फेज आ रहा है कनेक्टिविटी, इसमें कनेक्टिंग लाइन करने वाले हैं हिंजेवाड़ी। ओके, की इन्फ्लुएंस फैक्टर्स जो मैं अगर बात कर रहा हूँ चाकन का एज ए ग्रोथ सेंटर, तो कनेक्टिविटी है एज इन जो आगे डेवलप होने वाला है, प्लस इंडस्ट्रियल हब है जो रीजन सराउंड कर रहा है मेजर ऑटोमोबाइल एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। प्लस अगर अफोर्डेबिलिटी की बात करें, सो टेक्निकली अभी कैसा है, बाइंग पावर जो लोगों की रहती है, जैसे हुसैन साहब ने पहले भी शायद बोला है कि एक हर किसी की एक लिमिट होती है बाय करने की। लेकिन अगर डेवलपिंग एरिया में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं ना, तो जो उसमें 1 से 2 होता है, 2 तक फिर भी एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग खरीद सकता है, जो क्लास को अपन टारगेट कर रहे हैं। तो ये मौका, इसमें इन्वेस्टमेंट का यही फायदा रहेगा कि जब इसका प्राइस ग्रो हो रहा है या ना इंक्रीमेंट हो रहा है, तब उस पर आप अगर इन्वेस्ट करेंगे इनिशियल फेज में, तो आपको रिटर्न ज्यादा अच्छा आएगा और जल्दी आएगा। और मैंने जैसे 2021-41 का PMRDA का जो प्लान बताया था, उस हिसाब से गवर्नमेंट बहुत ज्यादा फोकस कर रही है रिगार्डिंग दैट ओनली, दैट इसको आगे डेवलप करें एज अ ग्रोथ सेंटर। अपकमिंग इंफ्रा जो मैं बात कर रहा था, सो मेजर रिंग रोड प्रोजेक्ट है, दैट इज पुणे के आउटसाइड बन रहा है अराउंड, जिसका अभी तक बाय 2026 कंप्लीट होने का एक्सपेक्टेड है। एंड अराउंड 125 एकर्स का एक्विजिशन हो भी गया है, जिसका आगे भी फर्दर एक्विजिशन, और एक बार एक्विजिशन चालू हो गया तो काम इजीली जल्दी शुरू हो जाता है। नासिक फाटक टू खेड़ का एलिवेटेड हाईवे का काम चल रहा है। मेजर कैसा है, पुणे चाकन में इंडस्ट्रियल हब है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो वहाँ पे काफी ट्रैफिक कंजेशन रहता है आज भी, आई एडमिटेड, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे डिमांड बहुत ज्यादा है। और जनरली आइडियली आप एक कंटेनर ट्रक में एक कंटेनर ही जा सकता है, तो ऑब्वियसली अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इतना वो कर रही है तो उनको रॉ मटेरियल या उसके लिए भी चीजें ज्यादा लगती है, और उसके लिए कारण ट्रैफिक कंजेशन रहता ही है। मेट्रो लाइन अगेन प्रपोज्ड है, सो ये दोनों चीजें कनेक्टेड है, नासिक फाटक टू खेड़ का जो एलिवेटेड हाईवे प्लस मेट्रो लाइन जो है हिंजवाड़ी टू चाकन, सो ये एक दूसरे के पैरेलली चलेंगे।
एंड फोर्थ वन इज नासिक पुणे सेमी हाई स्पीड रेलवे लाइन. नाउ दिस विल बी अ मेजर डील ब्रेकर. आइडियली मेरा जितना लोगों से बात हुआ है कि एक बार अगर ये रेलवे लाइन शुरू हो गई तो वो एरिया का रेट ऑटोमेटिकली बढ़ जाए, क्योंकि कनेक्टिविटी ईजी हो जाती है. और कनेक्टिविटी, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री या कोई भी प्राइवेट एंटिटी है, अगर उसको कनेक्टिविटी इजीली मिलता है तो दे इजीली थिंक ऑन एस्टेब्लिशिंग प्लांट देयर, सो दैट उनका जो ट्रांसपोर्ट है, ट्रांजिट है, वो इजी हो जाता है. एरिया एक्सपेंशन चाकन का जैसा मैं बता चुका हूँ, चाकन का अराउंड 25,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है फिफ्थ फेज में, जो अभी डावोस हुआ था, जिसमें महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 88,000 करोड़ का एमओयू साइन किया था, जिसमें से 25,000 करोड़ वॉज फॉर चाकन इटसेल्फ ओनली. जो मैंने आपको इनिशियली बताया था कि रिंग रोड प्रोजेक्ट का, उसका थोड़ा सा बाइफरकेशन है. आइडियली ये चिमली से होते हुए जाएगा, जिसको अगेन कनेक्ट करेगा. सो मेजर आपका, अगर ये रिंग रोड का फायदा यही रहेगा, सो दैट आपका जो ट्रैफिक कंजेशन है वो ईज हो जाए. जो सब्सिडरी रोड है, मतलब इंटरनल रोड्स पे प्रेशर कम आता है. नाउ नासिक फाटा टू खेड़ एलिवेट कॉरिडोर, आइडियली ये चाकन का जो रूट है, जो अगेन मैंने बोला कि ट्रैफिक कंजेशन ड्यू टू मैन्युफैक्चरिंग एंड एवरीथिंग गोइंग ऑन, तो उसलिए उस पर काफी कंजेशन रहता है. सो दैट इज द रीजन वो एलिवेटेड कॉरिडोर जो नासिक फाटा से स्टार्ट होगा डायरेक्ट खेड़ तक जाएगा, सो दैट जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं, जिनको चाकन में काम नहीं है, दे कैन इजीली गो. तो ये थोड़ा सा आपकी जो सब्सिडरी या इंटरमीडिएट रोड है उस पर ईज होता है. ना अगेन जो मैं आपको भी बता रहा हूँ, एक बार प्लीज ध्यान दीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको ये कनेक्ट करवा पाऊंगा. नाउ न्यू मेट्रो मार्ग अगर आप देखेंगे तो इसका रूट भी सेम है, एलिवेटेड हाईवे जैसा ही. सो द रीजन ये है कि इसका काम अभी इसलिए शुरू नहीं हुआ, गवर्नमेंट कंtemplate कर रही है कि मुझे एलिवेटेड हाईवे भी बनाना ही है. तो आइडियली एक एलिवेटेड हाईवे जब बनता है तो उसके ऊपर ही मेट्रो या ट्रेन का सेटअप होता है, ट्रेन कभी नीचे नहीं आएगी. सो दैट इज द रीजन ये इस चीज में आ रहा है. तो 2028 तक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये चीजें हो जाएगी, क्योंकि आइडियली उन दोनों के लिए पाइलिंग सेम ही रहेगा. नाउ हाई स्पीड रेलवे नेटवर्क, मैंने जो ऐसे आपको बोला है, जितना मेरे लोगों से बात हुई है, आइडियली वहाँ के जो चैनल, मतलब वहाँ के जो लोग हैं जो रहते हैं, वो बोलते हैं, बोले कि जो लैंड जिन्होंने घर लिया है एंड ऑल दैट, वो बोलते बोले कि एक बार अगर रेलवे चालू हो गया कनेक्टिविटी वाइज, क्योंकि आप अगर देखेंगे बॉम्बे से टुवर्ड्स नॉर्थ जो भी ट्रेन जाती है वो नासिक होते ही जाती है, एंड मेजर ट्रांजिट वहीं पे होता है. तो एक बार अगर फ्लाइट ट्रेन जो मालगाड़ी होती है उसको लिए ये कनेक्टिविटी मिल गई तो ऑटोमेटिकली एरिया डेवलप होगा, और एरिया डेवलप होगा तो कंपनीज और आएंगी, कंपनीज और आएगी तो उनको लोग लोग और चाहिए, लोग अगर आएंगे तो ऑब्वियसली घरों की जरूरत रहेगी. सो ये सारी चीजें इनडायरेक्टली कनेक्टेड है. अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, प्राइस एंड रेंटल यील्ड. तो आइडियली अगर आप प्राइस का देखेंगे तो ये एक्सपेक्टेशन है कि अगर रिंग रोड प्रोजेक्ट 2026 तक कंप्लीट होता है, नासिक फाटा खेड़ मेट्रो लाइन हाई स्पीड रेलवे, तो अराउंड 26% का अप्रिसिएशन विद इन 5 ईयर्स देख रहे हैं. ऑन एन एवरेज 4% का रहता है, लेकिन अगर आप कहीं कुछ नया सेटल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है तो ऑटोमेटिकली वो थोड़ा सा हाइक होता है. प्राइस अप्रिसिएशन जिस हिसाब से पहले का मैंने आपको बोला, अगर आप देखेंगे तो एक स्टीप हाइक हुआ है 25 से 26 के बीच में, क्योंकि उस टाइम पे रिंग रोड कंप्लीट हो गया. देन 2027 से 28 अगर आप देखेंगे तो अगेन वो थोड़ा सा स्टीप हुआ है, क्योंकि रेल पुणे हाई स्पीड रेल नेटवर्क आ रहा है. और ये कंजर्वेटिव फिगर है, अगेन ये बेयर मिनिमम इतना होगा ही होगा. मैं ज्यादा की तो बात कर ही नहीं होगा. जो लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं और जिन्होंने देखा है डेवलपिंग एरिया में इन्वेस्ट करके, और जब वो एरिया डेवलप हो गया तो वो दे विल एग्री विथ मी कि इससे ज्यादा ही होगा. बट मैं एक हमेशा लोअर साइड रहता हूँ, क्योंकि कंपनीज कॉयलर्स का हमेशा वो यही रहा है कि हम बेयर मिनिमम इतना पकड़ के चलते हैं. रेंटल यहाँ पे 3% इंक्रीमेंट के हिसाब से हमने देखा है, डे वन, मतलब ईयर ऑन ईयर. आइडियली ये 1 BHK के रेंटल 6 से 6.5 हजार के बीच में रहता है. 3% क्यों पकड़ा है? क्योंकि मान लीजिए अगर एक महीने भी आपका रेंटल पे नहीं रहा, सो देन वो एक महीने कवर अप करने के लिए आपका एवरेज 3% के आसपास ही बैठेगा. आज रेसिडेंशियल में अगर आप देखते हैं तो अराउंड 3 से 4% का ROI बैठता है, जनरली रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. यहाँ पे आपको 4% रहता है. आप 6,500 के फिगर पे अगर आप देखेंगे तो आपको ये समझना पड़ेगा कि उसके अगेंस्ट में आप दे कितना रहे. आज एग्जांपल, अगर 20 लाख में 2 BHK और उसका 7,000 का आपको रेंटल आता है, तो अगर 20 लाख इंटू 5 करूंगा तो वो 1 करोड़ हो जाता है, और 7 इंटू 5 करूंगा 35,000 हो जाता है. तो 1 करोड़ का अगर आप 3 BHK कहीं डेवलप्ड लोकेलिटी में रहते हो तो 30-35 हजार रुपये रेंटल आता ही है. तो ROI सेम ही है. सिर्फ प्राइस को लेके थोड़ा सा अगर आपका कंसर्न है तो वो क्योंकि अपन ने इन्वेस्टमेंट अमाउंट ही बहुत कम है. नाउ एज आई टोल्ड, ये पुणे का फर्स्ट ऑफ अ काइंड लॉटरी है, अब हर कोई जीतेगा. सो बेसिकली हमारा कल से लॉटरी एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है.
फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे, अलॉटमेंट अपना 15 अक्टूबर का रहेगा। अभी आपको अगर 1 BHK देखेंगे तो मेरा कारपेट अराउंड 370 से 400 स्क्वायर फीट का, जो 18.99 से लेकर 21.99 जाता है। और 2 BHK मेरा है अराउंड 550 to 600 स्क्वायर फीट, जो जाता है 25.99 टू 27.99, ऑल इंक्लूसिव। अभी अगर आपको ये पसंद आया तो अपन कर सकते हैं, पेमेंट के लिए भी वी कैन वर्क ऑन, आपका पेमेंट टर्म्स के लिए। तो उसके लिए भी आप बेफिक्र रहिए, हुसैन भाई हैं, हम कुछ ना कुछ अच्छा करके देंगे। दैट इट इज अ विन विन सिचुएशन बोथ ऑफ अस। मिलिंद जी सर, ये बताइए कि ये बिल्डर कौन है और इसका क्या बैकग्राउंड है, इससे पहले कौन कौन से प्रोजेक्ट्स इन्होंने कंप्लीट किए हैं, और ये जो प्रोजेक्ट है इसका रेरा का क्या सीन है, मतलब रेरा आ गया है, सब ओके है कैसा, और कब तक इसका पोजीशन मिल जाएगा सर? जी हुसैन साहब, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ें मिस कर दिया था, बट फिर मैं बता देता हूँ। ये इंटरकॉन्टिनेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है। सो बेसिकली ये हैदराबाद बेस्ड डेवलपर है हम। सो हमारा कैसा है कि हमारा पहला टाइम है पुणे में आने का, जो हमने एक प्रोजेक्ट उठाया है डेवलपमेंट के लिए। इससे पहले हैदराबाद में हमारे, जैसे अगर किसी को अंधेरी वर्सोवा सस्पेंशन ब्रिज पता होगा, तो वो भी हमने डेवलप किया है नवयुगा के साथ, पार्टनरशिप में। नवयुगा हमारा पार्टनर है। इनफैक्ट हैदराबाद में नवयुगा गोदावरी करके एक प्रोजेक्ट है हमारा हैदराबाद में, जो गवर्नर ऑफिस से हार्डली 50 मीटर्स दूर है। वहां पे मेरा 8.5 करोड़ का एक फ्लैट है। तो अगर अदरवाइज आप देखेंगे तो हमारा हैदराबाद में काफी अच्छा सेटअप है। रही बात प्रोजेक्ट की, तो मेरे इसमें 10 टावर हैं, जिसमें मैं 6 टावर लेके आ रहा हूँ। 2 टावर का पोजीशन जून 24 है, और 4 टावर का पोजीशन जून 25 है। ऑब्वियसली जिसका एग्रीमेंट में मेरा रहेगा December 24 लिखा हुआ, जिनका जून 24 में दे रहा हूँ पोजीशन, क्योंकि बिल्डिंग मेरा अप एंड रेडी है। अभी इंटरनल वर्क चालू होने वाला है, प्लास्टर वर्क। और जो बाकी के 4 टावर है उनका मैं December 25 आपके एग्रीमेंट में लिखा रहेगा, और जून 25 में कमिट कर रहा हूँ। ओके। और सर अपना, हमारे में आपको मैंने पहले ही बताया था कि हम लोग लोन में नहीं जाते हैं, हम लोग किसी भी तरीके से इंटरेस्ट में नहीं जाते हैं। तो इसमें सर आप हमें पेमेंट प्लान क्या बेस्ट करवा के देंगे, कितना बेस्ट डाउन पेमेंट देना है, रजिस्ट्रेशन का अमाउंट देना है, और फिर मंथली ईएमआई कैसा रहेगा सर इसमें? हुसैन साहब, मैं एक ही जवाब दूंगा, आप लोगों को नाराज नहीं करेंगे। नहीं वो तो पता है सर वो तो डेफिनेटली आप नहीं करेंगे। लेकिन एक क्या है कि मोटा मोटा एक अंदाजा आ जाएगा कि महीने का कितना ईएमआई भरना है, तो ये हम लोग 1 to 1 लेंगे, टेलर मेड लेंगे, या फिर आप इसमें जवाब दे सकते हो सर? करेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं। टेलर मेड जो रहेगा ना, अपन उस पर वर्क ऑन कर लेंगे, आप बेफिक्र रहिए। ओके। और सर मोटा मोटा यहाँ पर क्या रेंट आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, अगर कोई 1 BHK या 2 BHK का प्रॉपर्टी है, तो आरओआई कितना परसेंट हम लोग यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? हुसैन साहब, मैंने जो कैलकुलेट किया ना, एग्जाम्पल अगर मैं 19 लाख के हिसाब से, 18.99 के हिसाब से मैं पकड़ता हूँ, और उस पर अगर मैं 6,500 से भी रेंटल चालू करता हूँ, तो मेरा 4% का आरओआई आ रहा है। और मैं 3% इंक्रीमेंट पकड़ के चल रहा हूँ। अगर आप उस हिसाब से देखेंगे, और 5%, जैसे कॉइलर्स का रिपोर्ट बोलता है कि 5% अप्रिसिएशन नो डाउट हो ही जाएगा, मतलब वो 26% बता रहा है। दैट इज ऑन द कंजर्वेटिव साइड। अगर मैं बड़े उस पर करूँ तो वो ऑब्वियसली उससे ज़्यादा ही रहेगा। तो अप्रिसिएशन में भी इसमें कोई कंसर्न नहीं आएगा आपको कि मेरा यू नो कितना हुआ कैसा है। लॉन्ग रन के हिसाब से सर, मैं 10 ईयर्स के होराइजन में आपको मतलब रिक्वेस्ट करूंगा कि आप 10 ईयर्स के होराइजन में देखें इसको, प्रोजेक्ट को। क्योंकि अगर आप लॉन्ग रन में देखेंगे ना, तो इसमें आपको रिटर्न ज्यादा अच्छा आएगा। गवर्नमेंट का कैसा रहता है ना, वो 3 साल बोलते हैं, मैं 5 साल पकड़ के चलता हूँ। तो आपके हिसाब से मिनिमम 5 साल हमें एक्सपेक्ट करना है कि इसको, प्रॉपर्टी को हमें रखना है? मैं तो बोलता हूँ अगर 10 साल तक रखें तो बेटर है, उसमें ओके। और ज्यादा रिटर्न आएंगे एज कम्पेयर टू 5 ईयर्स। क्योंकि कैसा होता है ना सर, एक बार एरिया वो चीज आ जाती है ना, तो उसके बाद उसको डेवलप होने में थोड़ा टाइम लगता है, मतलब डिमांड धीरे धीरे जनरेट होती है। तो वो जो जब एक्चुअल प्रॉफिट का टाइम रहेगा ना, तब तभी मजा आएगा। ओके। 5 साल में से तो निकाल सकते हैं, ऐसा कंसर्न नहीं है। बट सिर्फ मेरा वही कंसर्न था कि आपको अच्छा रिटर्न देना चाहिए, क्योंकि आपके जो क्लाइंट्स है, मतलब एटलीस्ट रिटर्न अच्छा है तो अगली बार वापस से आप हम लोगों के साथ इन्वेस्ट करेंगे। ओके। और मिलिंद जी अपना जो प्राइस है वो बहुत ही प्यारा प्यारा प्राइस आपने दिया है, बहुत ही एकदम लुक्रेटिव प्राइस है, कि जो पूना जैसी मेट्रो सिटी में हम लोग सोचते हैं कि ये प्राइस कैसे पॉसिबल है। तो सर कहीं पर कुछ क्वालिटी का, या कहीं पर भी कुछ कटिंग कटिंग वटिंग मारा है, या फिर क्वालिटी का, क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन कैसा है सर, आप कुछ बताएंगे इसके बारे में? ठीक, देखिए मैं जैसा बोल चुका हूँ कि बेसिकली वी आर इनटू हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, हाईवेज डैम्स और उसमें थे। ये पहली बार हमने हैदराबाद के बाहर निकले, जिसमें पुणे और मुंबई में हमारे प्रोजेक्ट आ रहे हैं। तो आइडियली अगर आप देखोगे ना, तो अवर मेजर कंसर्न इज दैट हमें ऑब्वियसली, अगर अब मेरा अगर पहला प्रोजेक्ट आ रहा है तो मैं उसमें कोई कोताही नहीं बरतूंगा, या ना मैं कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं करूंगा उस पर। मेरा टारगेट यही रहेगा कि एटलीस्ट मैं जो बना रहा हूँ वो अच्छा क्वालिटी का दूं, क्योंकि मुझे आगे भी यहाँ पे बढ़ना है।
ऐसा नहीं है कि मतलब मेरे को यहीं पे रहना है, ये मेरा ये आखिरी प्रोजेक्ट है, इसके बाद मुझे काम नहीं करना है। वी आर इन टू अ ग्रोइंग फेज। तो जब मैं धीरे धीरे करके चलूंगा, इनफैक्ट बानेर में हमारा 7.5 एकड़ का लैंड का डील का बात चल रहा है, सो मोस्टली आई थिंक बाय नवंबर वो डील थ्रू हो जाएगा, बट ऑब्वियसली वो नेक्स्ट ईयर तक आएगा प्रोजेक्ट, और वो प्रीमियम सेगमेंट में रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर रहे हैं। हम हमारा लिए ब्रांड वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज द रीजन। आप मानोगे नहीं कि कंस्ट्रक्शन क्वालिटी में कोई काम चल रहा है सर, अभी मैंने बुकिंग करना चालू भी नहीं की है, काम और पहले ही चालू हो चुका है। ओके। और अगर कोई भी इसमें बुकिंग कराता है आज, अगर कोई 5,000 रुपया से टोकन से अगर कोई बुकिंग कराता है, तो क्या उसको उसका चॉइस का फ्लैट मिलेगा? कैसा इसका अपना सिस्टम है सर? बिल्कुल सर, करेंगे ना। ओके। और अगर मान लो कि अगर फ्यूचर में अगर किसी को कैंसिल करना है, अगर किसी ने 5,000 भी दिया, उसके बाद अगर एक 10% भी दे दिया, तो अगर कैंसिल किया तो उसका क्या रिफंड का सिस्टम है सर अपना? सर मेरे को जितना जल्दी बताएंगे उतनी जल्दी मैं करूंगा, बाकी कैंसिलेशन क्लॉज जनरली कुछ है नहीं, बट फिर भी मैं कंफर्म करके आपको बता दूंगा। ओके, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि अपना कैंसिल किया तो उनका पैसा जाएगा या उनको 20% 30% काट के मिलेगा, ऐसा कुछ अभी तक अपने डिसाइड नहीं हुआ? नहीं नहीं, सर कुछ ज्यादा कटेगा नहीं आइडियली, क्योंकि हमारा ऐसा पॉलिसी नहीं, लॉटरी हमने इसीलिए रखा था। अगर आप चाहिए तो ये क्या बोलते हैं, सो सॉरी। हाँ, 5% की जगह मैं तो ये 5,000 की जगह मैं ये बोलूंगा कि आप 10% दें, यूनिट डायरेक्ट होल्ड कर ले तो ज्यादा है, और वो सिर्फ एनआरआई के लिए हमने एक्सक्लूसिविटी दिया आपके लिए, कि आपके क्लाइंट को चॉइस ऑफ यूनिट मिल जाएगी। ये तो हमारा लॉटरी का कैसा है ना, अगर आप लॉटरी देखें ना, आइडियली लॉटरी कैसे वर्क करता है। आप टोकन ले लो, आप उस दिन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व आओ, जो अवेलेबल रहेगा। सपोज मेरे पास 100 फ्लैट है, जिसने जो पहला दिन आ गया उस दिन, उसके पास 100 ऑप्शन रहेंगे, लेकिन जो 50वें नंबर पे है उसके पास 50 ऑप्शन ही रहेंगे। ओके, गॉट इट। तो सर इसमें आज आज आपने बताया था कि आज अपना लॉन्च है, मैं इसमें नहीं आ पाया, मुझे पता है कि आज आप नहीं, लॉन्च में बिजी होंगे। उसके लिए अलग से बात करेंगे। हाँ, नहीं, उसका क्या बेनिफिट है आज अगर कोई भी टोकन देता है, आज रात तक अगर कोई भी टोकन देता है तो उसमें उसको क्या बेनिफिट है? आज अगर वो बुकिंग करेगा तो जो रेगुलर जो आप प्राइस या जो भी आप ऑफर दे रहे हो, उसके अलावा आप क्या बेनिफिट दे सकते हो सर? देखिए बेसिकली उसके लिए मैं इनको फ्लेक्सिबल पेमेंट तो दे ही रहा हूँ, ठीक है। अलग स्कीम बना के दूंगा, टेलर मेड। ओके। और अपार्ट फ्रॉम दैट प्राइसिंग में भी मैं कुछ अच्छा करके दूंगा, बेफिक्र रहिए। ओके। अगर जो मेरा है 18.99, ये मेरा ऑल इंक्लूसिव है, तो ऑब्वियसली इसमें मैं आपको डिस्काउंट दूंगा ही नहीं। अच्छा, ओके, तो 18.99 के ऊपर आप रजिस्ट्रेशन के चार्जेस आप एक्स्ट्रा नहीं ले रहे हो? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल सेम ही है। अंकिता भी आपसे कुछ बोलना चाहती है, अंकिता प्लीज बोलिए ना। नहीं मिलिंद जी, मैं ये पूछ रही थी ये कैसे पेमेंट कैसे करना है, ये जो आप 5,000 बोल रहे हैं। ये क्यूआर कोड है, उसको स्कैन करके देना है। बट आई थिंक उस पे अगर प्रॉब्लम आ रही है तो फिर मैं बैंक अकाउंट डिटेल्स भी शेयर कर देता हूँ। तो अगर किसी को भी बुकिंग ठीक है। करना है तो वो मुझे 1 to 1 कनेक्ट कर सकते हैं और मैं उनको क्यूआर कोड कोड जो है वो शेयर करूंगा। और आपको क्या क्या केवाईसी के क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे बुकिंग के लिए? मेरे को पैन कार्ड और आधार कार्ड लगेगा टेक्निकली उसके लिए। तो उसके अलावा एक फॉर्म है, तो वो अपन बाद में भी कर सकते हैं, बट बेजर जो है मेरे को पैन कार्ड आधार कार्ड लगेगा, और वीज़ा लगेगा मुझे, जो क्लाइंट का है, फॉर एनआरआई क्लाइंट्स। ओके, और हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसका सर? पोजीशन हम कब तक दे रहे हैं ये प्रोजेक्ट का? मैंने आपको पहले बताया था, तो मेरे 6 टावर लॉन्च कर रहा हूँ मैं, जिसमें से 2 टावर का पोजीशन नेक्स्ट ईयर जून में ही है, और तो बाकी उससे का पोजीशन June 25 है। ओके। और अगर इसमें अगर कुछ डिले होता है अगर प्रोजेक्ट में, तो कुछ पेनल्टी क्लॉज वगैरह कुछ है कि बिल्डर कुछ उसको जो जो रेरा नॉर्म रहते हैं उसी पे वो रहता है, वो अपना स्टैंडर्ड है। बट टेक्निकली मैं आपको बोलूंगा, अगर आज आप उस दिन भी आए थे, मैं जो 2 टावर की बात कर रहा हूँ, अगर आपने देखा होगा तो आई थिंक 7th 8th फ्लोर तक का काम हो चुका है। ઓકે, ગોટ ઇટ। તો राइट। કેમ કે આપને ઓપન છે પ્રોજેક્ટ નું લોકેશન ફાઇન છે, ફ્યુચરમાં ડેવલપમેન્ટ સારું છે। આજે ઇન્ડિયામાં અને આખા દુનિયામાં આજે ઇન્ફ્લેશન ઘણું વધી રહ્યું છે, એને બીટ કરવાનો એક જ તરીકો છે કે તમે પ્રોપર્ટીમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરો। આજે સિમેન્ટના પ્રાઇસ વધી રહ્યા છે, રો મટીરિયલના પ્રાઇસ વધી રહ્યા છે, સ્ટીલના પ્રાઇસ વધી રહ્યા છે, બિલ્ડરને પણ હવે ધીમે ધીમે એના જે કોસ્ટિંગ છે એનો કોસ્ટ એનો વધવાનો જ છે। તો એ ચાહે કે ના ચાહે કોઈ પણ જગ્યામાં પ્રોપર્ટીના પ્રાઇસ ઇન્ક્રીઝ કરશે। તો હમણાં અગર તમે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરો છો તો તમારે એનું બેનિફિટ એ મળે છે કે જ્યારે એ પ્રાઇસીસ વધશે તો એના સાથે તમારા પણ પ્રાઇસ વધશે, કેમ કે તમે એ આજે અગર એક 5,000 રૂપિયા આપીને પણ આજે ટોકન યા તો 10% આપીને તમે આજે એક પ્રોપર્ટી બુક કરો છો, એક યુનિટામાં બુક કરો છો, તો તમારો પ્રાઇસ જે છે ને એ લોક પીએ છે। પછી ફ્યુચરમાં બિલ્ડર પ્રાઇસ વધાવશે તો એનાથી તમારે કંઈ ઇફેક્ટ નહીં થાય। અને તમારે ખબર છે કે પ્રોપર્ટીના પ્રાઇસ વધે છે, કમ નહીં થતા। આજે કોઈ પણ દુનિયામાં રિસેશન આવે છે, આજે કોરોના પણ આવ્યું હતું અને ઘણી ચીજો થઈ હતી, પણ ક્યારે પણ એમ નથી થયું પ્રોપર્ટીના પ્રાઇસીસ સ્ટેબલ થયા હતા। હા, કોઈને અર્જન્ટ પૈસાની જરૂરત હોય ને એ ડિસ્ટ્રેસ સેલમાં નિકાલે, મેં એની વાત નથી કરી રહ્યો, એ બધા એક્સેપ્શનલ કેસીસ છે।
પણ રિયલ એસ્ટેટના પ્રાઇસીસ ક્યારે પણ ડ્રોપ નહીં થતા, એ હંમેશા વધતા હોય છે. તો આજે અગર તમે બુક કરાવો છો તો તમારે પેમેન્ટના વખતે પણ ફાઇન ચાન્સ મળશે, અને તમે જેટલા જલ્દી બુક કરાવો છો તો તમારે ચોઇસ મળે છે કે કયા યુનિટ તમારે લેવો છે. પછી એમ ના થાય કે તમે લેટ કરી નાખો, તમે સોચવામાં રહી જાઓ અને ફ્યુચરના અંદર ખાલી જે થોડા ઘણા યુનિટ્સ બચી ગયા હોય એ જ યુનિટ્સ પછી તમારે ચોઇસ ઘણી કમ મળશે ફ્યુચરમાં. અને આજે જે બેનિફિટ મળી રહ્યું છે પ્રાઇસનું, તમારે જે ડિસ્કાઉન્ટ મળી રહ્યું છે એ તમારે પછી આગળ शायद ना मिले. आइडियली कैसा होता है, आज अगर मैं किसी को बोलूं कि 30 लाख में 1 BHK मिल रहा है और मेरा वर्किंग जहाँ पे मैं काम करता हूँ उसके पास में, तो कोई भी सोच सकता है कि हाँ ठीक है, 30 लाख में मेरे पास 1 BHK आ रहा है। यही चीज मैं अगर आपको बोलूं कि 5 साल के होराइजन में आप देखो, 5 साल बाद, क्योंकि आज जो चीज मिल रही है जिस प्राइस में, ऑब्वियसली वो प्राइस बढ़ती है, प्राइस कभी भी स्टैग्नेट नहीं रहती, मतलब एक ही प्राइस नहीं रहेगी। क्लासिक एग्जांपल है, आप लोगों ने जहाँ पे भी प्रॉपर्टी ली है, प्राइस हमेशा बढ़ती ही जाती है। बट लेकिन आपको एक चीज देखना पड़ेगा कि जितना प्रॉपर्टी का प्राइस बढ़ता जाएगा उतना उसको खरीदने वाले लोगों की वॉल्यूम कम होती जाएगी। मतलब आज जो 30 लाख में 100 लोग फ्लैट खरीद सकते हैं, जरूरी नहीं कि 3 करोड़ का फ्लैट वो 100 लोग खरीदेंगे, उस वो हार्डली 5 लोग ही खरीद सकते हैं। रियल एस्टेट मार्केट का यही ब्यूटी है। हुसैन साहब मैं अगर गलत बोल रहा हूँ तो बोलिए। नहीं सर, आप 100% राइट हो, क्योंकि सर क्या है कि आज इतना साल मुझे हो गया है प्रॉपर्टी की लाइन में, मुझे अलग अलग लोगों के अलग अलग यादें हैं कि अगर आज से 20 साल पहले यहाँ पर ये प्लॉट 10,000 में मिल रहा था, मैंने नहीं लिया। यहाँ पर ये प्लॉट ये फ्लैट जो थे, हम लोग जब यहाँ पर आए थे तभी 2 लाख 2.5 लाख में मिल रहे थे, और ये फैक्ट है। जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं तो 7 साल पहले जब मैंने ये बिजनेस शुरू किया था, उस वक्त उंदरी में कहा जाता था कि वहां पर प्रॉपर रोड्स नहीं थे जाने के लिए, और मैं मना करता था कि ऐसी जगह में मैं क्यों किसी को मैं फ्लैट दिलाऊं कि जहां पर प्रॉपर रोड्स नहीं है और कुछ कनेक्शन नहीं है, जहां पर पानी का प्रॉब्लम है। लेकिन आज जब मैं देख रहा हूं तो वहां का उंदरी का जो डेवलपमेंट हुआ है, वहां पर प्रॉपर रोड्स आ चुके हैं, पानी का कनेक्शन आ चुका है, उस जगह में आज बहुत बड़ी बड़ी सोसाइटीज आ गई है, और वहां का प्राइस 10-7 साल में 50 से 70% अप्रिशिएट कर चुका है। तो मैं खुद सोचता हूँ कि काश कि उस वक्त अगर मैंने एक प्रॉपर्टी वहां पे ले ली होती, क्योंकि उस वक्त भी वहां पर ऐसी सब स्कीम्स थी उसमें कि आपको सिर्फ 10% आपको डाउन पेमेंट देना है, आपको मंथली ईएमआई देना है। तो आज मेरा वो प्राइस, यानी कि क्योंकि वैसे भी मैं उसमें पेमेंट एक साथ दे नहीं रहा हूँ, मैं पेमेंट उसमें 3 साल 4 साल में दे रहा हूँ, तो मेरा बेनिफिट ये हो जाता है कि मुझे पेमेंट के लिए भी टाइम मिल जाता है और मेरी एक प्रॉपर्टी बन जाती है, और साथ में उसमें अप्रिसिएशन मिल जाता है। सर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे मैंने एक किसी का मैंने एक मेरे क्लाइंट का मेरे साथ में उनको विजिट के लिए जा रहा था। 35 साल पहले उन्होंने एक प्रॉपर्टी लिया था 2.5 लाख रुपए में। करीब आज से 35 साल पहले 1988 में उन्होंने एक प्रॉपर्टी लिया था 2.5 लाख रुपए में, एक प्रॉपर्टी लिया था पूना में। और आज उनको महीने का सॉरी साल का उनको आज उनके ऊपर रेंट ही 4.5-5 लाख रुपए आ रहा है, यानी कि 200% सिर्फ उनको रेंटल इनकम आ रही है। तो इसमें ऐसा ही है सर कि ये क्या है कि ये अ, आप जैसे किसी कोई प्लांट उगाता है तो आपको पेशेंस रखना पड़ता है, आपको उसको पानी देना पड़ता है, आपको फर्टिलाइज करना पड़ता है, आपको उसका ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन जब वो पूरा एक प्लांट एक ट्री में कन्वर्ट होता है, फिर वो आपको कंटिन्यूसली फ्रूट देता है। तो ये प्रॉपर्टी बिल्कुल वैसी है कि आपको अभी थोड़ा कभी कभी क्या होता है कि कोई सैलरीड पर्सन है, कोई बिजनेसमैन है, उसको तकलीफ होती है महीने महीने का ईएमआई देने में। लेकिन जब वो प्रॉपर्टी बन जाती है, फिर वो प्रॉपर्टी फिर उसको उसका उसका बेनिफिट्स उसको देती है। આ જે પ્રોજેક્ટ છે, આજના જે પ્રોજેક્ટ લાવ્યો છું, આ પ્રાઇસમાં અને આ લોકેશનમાં બીજા કોઈ પ્રોજેક્ટ હમણાં નથી। ઘણો ફાઇન પ્રોજેક્ટ છે, અને એમાં તમારે પેમેન્ટના ટર્મ્સ પણ ફાઇન છે, એના પ્રાઇસિંગ ઘણા ફાઇન છે। તો અગર આપ કોઈ નાનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સોચી રહ્યા છો કે જ્યાં પર આપના પૈસા ગ્રો થાય, તો ઘણીવાર ઘણા લોકો ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરે છે બચ્ચાઓના વાસ્તે, એના વાસ્તે કરે છે કે ફ્યુચરમાં હમણાં એક નાનો સો એક અમાઉન્ટમાં તમે એક ઈએમઆઈ ના અંદર તમે એક પ્રોપર્ટી લઈ લો, અને પછી જયારે આપના ફરજન જયારે મોટા થાય છે ત્યારે એમને એજ્યુકેશનના અંદર યા તો શાદીમાં જયારે એક સાથે પૈસાની જરૂર પડે તો તમે આ પ્રોપર્ટી સેલ કરો, યા તો પછી આ પ્રોપર્ટી એમને ગિફ્ટ કરી નાખો। કેમ કે આજે હજી પણ ઘણું આસાન છે લોકોના વાસ્તે પ્રોપર્ટી ખરીદવું, કે જયારે ધીમે ધીમે અગર આપ જોશો તો ફ્યુચરમાં એટલું આસાનીથી પ્રોપર્ટીઝ નહીં મળે, આ પ્રાઇસમાં આ લોકેશનમાં પાછી પ્રોપર્ટીઝ નહીં મળે। તો તમે એક પ્રોપર્ટી લઈને ફ્યુચરમાં, કેમ કે આ પ્રોપર્ટી તમે લોંગ ટર્મના વાસ્તે જ લેજો। ફ્યુચરમાં અગર આપ સોચી રહ્યા છો કે 10 વર્ષ 15 વર્ષ પછી અગર આપને કઈ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ જે આજે કરો છો એ ફ્યુચરમાં તમારે કામમાં આવે, કે જ્યારે પ્રોપર્ટીને તમે સેલ કરી શકો, યા તો તમે તમારા બચ્ચાઓને તમે ગિફ્ટ આપી શકો। તો ઘણા ફાઇન ઓપ્શન્સ આપણા પાસે હમણાં આજે અવેલેબલ છે।